A very good morning, dear all my children. Today we are going to discuss about Class 9 History, Chapter 1, the French Revolution. But students, before coming to this chapter, we have to understand about the basic background of French society during late 18th century. लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस का सोसाइटी कैसा था उसके बारे में we will come to know about it, and then we should understand कि what happened during late 18th century that made people of France set for the revolution. So let's have a look about the background of French society during late 18th century. Student, if you could see that the French society was being divided into 3 states. फ्रांस का सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटा हुआ था लेट 18th सेंचुरी में. क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल. क्लर्जी कम्स अंडर फर्स्ट स्टेट. Nobility comes under second state and common people comes under third state. Now whenever I am talking about first state, I mean religious leader belonging to church. क्लर्जी मीन्स वो सारे रिलीजियस लीडर जो रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते थे. स्टूडेंट याद रखना इस चीज को, वो सारे रिलीजियस लीडर जो रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते थे वो फर्स्ट स्टेट में आते थे. नोबिलिटी का अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट किंग, क्वीन, रॉयल family. Now see, under nobility we talk about all those who belongs to the royal family. They may be king, queen, etc. Then at last you could see the third state. In third state we will have to talk about rich merchants, peasants and poor peasants. स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बैकग्राउंड पहले समझो कि आखिर लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच का सोसाइटी किस तरीके से बटा हुआ था. तो फर्स्ट स्टेट था, उसमें क्लर्जी आते थे, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लर्जी वी मेंट अबाउट चर्च. ये फर्स्ट स्टेट था. सेकेंड स्टेट में नोबिलिटीज आते थे. नोबिलिटीज मतलब वो सारे लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. See student, if you could see about the third state, in third state it was further divided into 3 groups: rich merchants, peasants and poor peasants. Okay, now you understand one thing, you can see an hierarchy over here. एक hierarchy नजर आएगा. What is hierarchy? You could see जब पावर टॉप से बॉटम डिविजन होता है, जहां पे जो सबसे टॉप में है उनके पास सबसे ज्यादा पावर है और जो सबसे नीचे पायदान में है उनके पास सबसे कम पावर है. इस चीज को हम हायरार्की कहते हैं. The one who is at the top they enjoy all the power and the one who is at the bottom they enjoy the least power. And अगर तुम उस समय का फ्रेंच सोसाइटी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंच सोसाइटी एक हायरार्की को शो कर रहा है. फर्स्ट स्टेट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ चर्च, they tends to be more powerful. Second state that is of royal family, they tends to be less powerful as compared to the church, and the common people they were having least power in their hand. Means they were having no privilege in the French society. Now one thing you understand, this two together utilizes 60% of land. These two together enjoys 60% of land in France alone, and rest of the land was being under their population. But student, एक चीज बहुत हैरान करने वाली है कि अगर आप देखोगे population wise तो you will see कि ये जो clerical group है इनका जो population है वो around 2% है. The population of clergy is only of 2%. And around 2% population is of nobility. Rest of the population belongs to the common people. Means 60% of land and population wise only
4%। मीन्स जितना कम पॉपुलेशन है उनका, उतना ही ज्यादा ये लैंड यूज कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा ये रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। और जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अराउंड 90% प्लस पॉपुलेशन, उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज है। यानी कि इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, सारा का सारा प्रिविलेज इनके हाथ में। अब देखो क्लर्जी का काम क्या होता था, जो चर्च के लीडर्स होते थे, जो चर्च से बिलोंग करते थे, उनका काम क्या था, दे वर एक्टिंग लाइक एन एडवाइजरी टू किंग। मीन्स जो क्लर्जी है अपने आप को टॉप मोस्ट पावरफुल पायदान पे रखा है जिन्होंने, इनका काम था दे वर एक्टिंग लाइक अ एडवाइजरी टू किंग। मीन्स दे यूज्ड टू गिव एडवाइजेस टू द किंग। एंड देन यू कुड सी हायरार्की एकदम नजर आ रहा है फ्रांस की सोसाइटी में लेट 18th सेंचुरी में। टॉप में फर्स्ट स्टेट मोर पावरफुल देन द सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट वर हैविंग नो पावर इन देयर हैंड। नाउ स्टूडेंट्स सी, apart from that hierarchical distribution of French society, let's understand at that time, means during late 18th century, who was the ruler in France. See, Louis XVI, King of France, King of France. During late 18th century, Louis XVI was the King of France. He belongs to Bourbon dynasty. He belongs to Bourbon dynasty. At the age of only 20 years, 20 साल के ही उम्र में, he married to an Austrian king, Austrian princess. At the age of 20 only, he married to an Austrian princess, Marie Antoinette. बात समझो, Louis XVI was the king of France. He belongs to Bourbon dynasty. Marie Antoinette was the princess of Austria, and Louis XVI married to Marie Antoinette at the age of only 20 years. अब फ्रांस में पहले बैकग्राउंड समझो कि दो तरीके का टैक्स था। मीन्स दो तरीके का टैक्स फ्रांस में पे किया जा रहा था कॉमन पीपल के द्वारा। पहला था टिट्स और सेकंड था टेली। अगर तुम टिट्स का देखो तो याद रखना हमेशा, टिट्स इज द इनडायरेक्ट टैक्स पेड टू द चर्च। मीन्स जो इनडायरेक्ट टैक्स हम चर्च को देते थे वो टिट्स होता था, और टेली का मतलब है डायरेक्ट टैक्स जो हम सीधा गवर्नमेंट को देते थे, स्टेट को देते थे। स्टूडेंट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Louis XVI was the king during that time. He married to Austrian princess, that is Marie Antoinette. Two different kinds of taxes were there, tithes and taille. Tithes indirect tax जो हम चर्च को देते थे, यानी कि indirect tax किसको पे होता था, तो चर्च को होता था। taille क्या था, taille का मतलब है डायरेक्ट टैक्स जो हम सीधा सरकार को दे रहे हैं। अब लीवर, ये लीवर क्या है, तो ये है करेंसी फ्रांस का, यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस। याद रखना, यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी वाज नोन एज लीवर। ओके, फिर से देखो, लुई 16 किंग ऑफ फ्रांस, ही बिलोंग्स टू बर्बन डायनेस्टी, ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस Marie Antoinette. When you talk about taxes, so you could see two different kinds of taxes were there, tithes and taille. The indirect tax that was being given to the church, उसको हम tithes कहते थे, और जो डायरेक्ट टैक्स सीधा सरकार को दिया जाता था उसको हम taille कहते थे। लिवर क्या था, तो लिवर उस समय का फ्रांस का करेंसी था। ऑलराइट, अब स्टूडेंट एक चीज चौंकाने वाली ये है कि इनका पॉपुलेशन, लाइक थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था। पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद भी सारा टैक्स, ये सारा जो टैक्स है वो कौन पे कर रहा था, ये सारा टैक्स पे कर रहे थे कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट। फर्स्ट टू स्टेट्स को टैक्स देने से मना कर दिया गया था। मीन्स फर्स्ट टू जो स्टेट थे उनको टैक्स से छुटकारा मिल गया था, उनको टैक्स पे नहीं करना होता था। सारा हार्डवर्क, सारी चीजें, स्ट्रगल, सारी चीजें करनी पड़ती थी थर्ड स्टेट को, और ऊपर से टैक्स भी पे करना पड़ता था उनको।
that was somehow creating a problem in French society कि इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी इनके पास जो प्रिविलेज है, जो राइट्स है, वो ना के बराबर है, रिसोर्सेस ना के बराबर है, लैंड बहुत कम था इनके पास, राइट्स का तो हम बात ही नहीं करेंगे अभी थर्ड स्टेट के लिए, और ऊपर से इनको टैक्स भी भरना पड़ता था. तो दैट वन बाय वन द सिचुएशन वाज गेटिंग वेरी वर्सेंट, एंड at a time comes when during 1789 people set for the revolution. Student, look, why France treasury got empty during late 18th century. फ्रांस का जो खजाना था, फ्रांस का जितना भी संपत्ति था, वो धीरे धीरे करके लेट 18th सेंचुरी में खत्म क्यों होते जा रहा है. पहले तो समझो कि why for any country treasury is an important thing. कभी भी देखो, चीजें एक देश में बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है. जैसे आप देखो ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी चीजें, उन सबको मेंटेन करने के लिए, उस सबको बैलेंस करने के लिए हमको पैसा चाहिए होता है. और वो कहाँ से आता है? वो जो सरकार का खजाना होता है वहां से हम यूज करते हैं. उस खजाने को भरा कैसे जाता है? बाय द टैक्सेस. मतलब जो कॉमन पीपल टैक्स दे रहे थे उससे किंग का पूरा वो जो खजाना था उसको भरा जा रहा था. लेकिन वो जो खजाना था वो खत्म कहाँ हो रहा है? कॉमन पीपल के ऊपर नहीं, बल्कि ये यूटिलाइज हो रहा है राजा के अपने पर्सनल चीजों के ऊपर. जैसे अगर तुम इंडिया का बात करो, इंडिया में जो ट्रेजर है वो ट्रेजर हमारे ही ऊपर खर्च होता है. हम उस ट्रेजर को भरते हैं और हम ही उसको खत्म करते हैं, हमारे ही ऊपर वो यूटिलाइज होता है. लेकिन वहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो कहीं ना कहीं पीपल को फोर्स किया लुइस 16 के खिलाफ जाकर रेवोल्यूशन करने के लिए. अब एक एक करके इस पॉइंट को समझना है कि सबसे पहला रीजन है वॉर. ये जो खजाना खत्म हो रहा था उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था स्टूडेंट वॉर. अब फ्रांस क्या कर रहा था? फ्रांस अपने नेबरिंग सारे के सारे कंट्रीज को अटैक करना चाह रहा था और उसके बाउंड्रीज को अपने अंडर लेना चाह रहा था. जबकि तुम देखोगे जब लुइस 16 के पहले जितने भी रूलर आए थे, समहाउ लुइस 16 से फार बेटर रूलर थे और उन्होंने फ्रांस के डेवलपमेंट के लिए काम किया था. लेकिन ये जो लुइस 16 था ये एकदम इररिस्पॉन्सिबल रूलर था जिसने पूरे के पूरे फ्रांस के ट्रेजरी को एम्प्टी कर दिया, खत्म कर दिया. अब लगातार वो वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है. आप देश के डेवलपमेंट से ज्यादा, आप पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा लगातार आप दूसरे के कॉलोनीज को अटैक करके उसको अपने अंडर लाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्रांस का ट्रेजरी खत्म होगा. दूसरा देखो, किंग क्वीन एक्स्ट्रावेगेंसी. ये जो राजा था, ये जो रानी मैरी एंटोनेट थी, ये जो लुइस 16 थे, they were very extravagant by the nature. बहुत अधिक खर्चीले स्वभाव के थे. अब ये इतने ज्यादा शौकीन थे चीजों के कि they wanted to fulfill their own desire and their own wishes by the money of the France treasure. मतलब इमेजिन करो, कॉमन पीपल हार्ड वर्क करके उस ट्रेजरी को फुल कर रहे थे, उस खजाना को भर रहे थे, और ये जो लुइस 16 और मैरी एंटोनेट थी, ये अपने पसंद की चीजों के ऊपर अपने निजी स्वार्थ के लिए उस पूरे के पूरे खजाना को खत्म करते जा रहे थे. तो कॉमन पीपल का एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि व्हाई वी विल पे द टैक्सेस? वी आर पेइंग द टैक्सेस एंड इट इज नॉट इवन बीन स्पेंट ऑन अस. तो दैट इज द क्वेश्चनेबल थिंग्स कि किंग्स आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्फ. दे आर मेकिंग द treasure got empty to fulfill their own desire and luxury. Where is the desire of the common people in France? That was indeed a questionable thing. Now you see student, याद रखना 13 कॉलोनीज अमेरिका की, इसको अटैक किया था ब्रिटेन. अमेरिका को अटैक किया था ब्रिटेन. अमेरिका के 13 कॉलोनी को अटैक किया था ब्रिटेन. अब फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन. फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन. तो फ्रांस क्या कर रहा है? अमेरिका को हेल्प कर रहा है उस 13 कॉलोनीज को रिलीज कराने के लिए. तो कहीं ना कहीं आप जब हेल्प कीजिएगा तो पैसा चाहिए,
आर्मी चाहिए, तो वो सारा कहाँ से आ रहा है? फूड रिसोर्सेज सब चाहिए, तो कहीं ना कहीं फ्रांस के खजाने से आ रहा है. तो दैट वाज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न. नाउ स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास ऑफ डिस्कशन we discussed about the background of French society. तो जब फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हमने देखा तो we have seen कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो एक हायरार्की को शो कर रही थी. हायरार्की मतलब जो सबसे टॉप में है क्लर्जी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है. उसके बाद किंग और क्वीन नोबिलिटीज में आते हैं. सेकंड स्टेट वो कहीं ना कहीं कम पावरफुल है, और सबसे कम और सबसे लीस्ट पावरफुल ना के बराबर कौन है? थर्ड स्टेट. फर्स्ट टू स्टेट जो था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड nobility, they enjoy all the privilege and all the benefits, and all the hard work, all the struggle fall into the shoulder of the third state. That was continuously making the situation of France very deteriorating. At that time, during late 18th century, you could see Louis XVI was the king of France. He married at very young age to Austrian princess Marie Antoinette. Now they together made the treasury of France got empty. Why? Because they involved themselves in the war. उसके बाद तुम देखोगे अगर तो मैरी एंटोनेट और ये जो किंग थे ये बहुत ज्यादा लग्जरी स्वभाव के थे. तो इस अपने लग्जरी को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करते थे, और 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका को रिलीज कराया था फ्रांस ब्रिटेन के खिलाफ. तो दिस वेयर द कॉमन फैक्टर फ्रॉम वेयर द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस गॉट टू बी एम्प्टी. स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज. If you get any doubt anywhere, you can ask through comment box.